welcome you all in today's video in which we will talk about that now every one of you are having upcoming exams of MBBS second year. Some are having within 2 months, some are having after January. Okay, so whatever be the case scenario, we will see that how you can finish your MBBS second year syllabus in the current scenario. Okay, as well this year I know that I have not made many academic topics related to second year MBBS due to my final year itself, but I will try making some videos of academic content. So you can comment below the most difficult topic or unit you would want video on in second year. Okay, जैसे पैथोलॉजी में अगर आपको एनीमिया टफ लगता हो, ऑब्वियसली एनीमिया तो काफ़ी पढ़ चुके होगे आप, बट वॉट एवर इज द टॉपिक यू कैन कमेंट बिलो सो दैट आई विल ट्राई इफ आई कैन मेक इट. So now this is what we need to focus on right now, is how you should finish your MBBS second year. Okay, so now let's assume that you have a time range of 1 to 2 months. Okay, some students are having exams in after 2 months, some are having within 2 months, or they are pre-universities. Okay, so now what I have done is I have made a 21-day timetable for you again, like 21 day we followed in first year. So 21-day timetable for you. Now this is all up to you. If you are having around 2 months in the exam, so you can follow it 21 day each for a subject, like 21 day pathology, 21 day pharma, 21 day micro. Okay, and if you are having less time, say you are having around 40 days, so you can merge it. Okay, so I have designed it according to you only. So we will see that 21-day timetable in 3-column approach, and we will see it in 5 steps. So now what is all this tactics? Let's go ahead. So first is the step 1, that you should know that what topic you have to learn. Okay, now अभी तक क्या हुआ है कि आपने MBBS में जो पढ़ा है ना, in second year. So second year में it takes time for you to know that what is important, and not only for exam but in general in your practice or whatever you need to know. Okay, सो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. रॉबिन्स आपने पढ़ा होगा, आपने रॉबिन्स में हो सकता है कई यूनिट्स ऐसे पढ़े हो जो बिल्कुल बकवास, जिनमें कुछ मतलब ग्रास्प भी नहीं हो सकता है ना. बट अगर रॉबिन्स में आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं पढ़ा है और आपने वो अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो इट इज़ अ बिग लॉस एट योर एंड. ओके, सो फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट टॉपिक्स यू नीड टू लर्न, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम और एनीथिंग, बट what is needed at your level. Okay, then you need to focus on IMPs of your exam. Okay, clinical cases, IMPs है ना. बट क्या होता है कि सीधे सपोज करो आई हैव रिटन दैट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर इंपॉर्टेंट. अब आपको कुछ इन्फ्लेमेशन के बारे में पता ही नहीं, यू नो नथिंग अबाउट एक्यूट क्रॉनिक वॉट्स एवर. ओके, नाउ डायरेक्टली इफ यू स्टार्ट रीडिंग मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, देन यू नीड टू मग अप द होल टॉपिक, बिकॉज जो लिंकिंग है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगी. ओके, so now I have designed a 21-day timetable for you all in such a manner that you should know that what topics you need to learn, what all things you need to learn in those topics, and in the order, so that you can link the complete unit. Okay, so now let's see a sample. So basically I have designed it like this, that there is a 3-column strategy. Okay, now what does this mean is बेसिकली दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन. ओके, अगर अभी आपकी दिवाली हॉलीडे से 10-15 डेज का, सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव मॉर्निंग आवर्स जो भी आपके रहते हैं ना. सो दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन 2.5 आवर्स. यू कैन दिस इज़ द बेसिक दैट यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे. अब आप ज़्यादा पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू. सो नाउ दिस इज़ द मोस्ट हाई यील्डिंग सेशन. देन कम्स द सेशन से आफ्टर लंच, है ना, जिसमें थोड़ा सा मतलब पेस कम होने लगता है ना. और फिर आता है 1 to 2 आवर सेशन. तो ये जो 1 आवर सेशन है, इसमें मैं क्या चाहूँगा कि बेसिकली अभी तक आपने क्या है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी सेकेंड ईयर में. अगर आप कोई कोचिंग के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं या आप कहीं पे लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, सो यू हैव मेड योर नोट्स एंड यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं एक बार के, चाहे आपका थोड़ा भी उसको आता हो आपको, सो यू नीड टू पुट दैम अंडर दिस सेशन. ओके, और जो टॉपिक अनफेमिलियर है, अब जैसे आपने सपोज करो आज तक यू हैव नेवर लर्नड अबाउट CNS फार्मेकोलॉजी, so you need to start studying CNS pharmacology in this session. Okay, I have covered all the content of your second year in these 2 session only. तो अगर आप पूरा 21 डेज का पैथोलॉजी पार्ट कवर कर जाएंगे, इवन आप ये वाला सेशन नहीं भी करेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपका अनफेमिलियर नहीं रहेगा. सो ये जो सेशन है ये 2 काम करेगा. या तो आप अनफेमिलियर टॉपिक यहाँ डाल लीजिए, या किसी दिन इफ़ यू लैग हियर, अगर आपसे ये टॉपिक कवर नहीं हो पाए तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो आपका टाइम टेबल स्मूथ चलेगा. ओके, नाउ हाउ आई हैव डिजाइंड इट, सी लाइक दिस इज़ द बेसिक सेल इंजरी का जो बेसिक इफेक्ट्स होते हैं और जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होते हैं बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वो आप पहले दिन करेंगे. ओके, इन द फर्स्ट सेशन. अब आप सेकेंड सेशन में अगर आप ऑर्डर से देखेंगे, सो यू वुड थिंक दैट देयर शुड बी necrosis, apoptosis, atrophy, hypertrophy, all these things, but I have not put it here because आपका जो पीक सेशन है वो ये है. तो आपने पीक सेशन में सबसे मतलब स्टार्ट ऑफ कर लिया
कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़े, बट जो थोड़े ईजी टॉपिक्स है जैसे कि कैल्सिफिकेशन है, गैंग्रीन है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस 2 टाइप के पता करना है, उनके डिफरेंस पता करना है, तो ये वाला सेशन को आपको लाइट रखना है. ओके, सो आई हैव ऑन डे 1 पैथोलॉजी आई हैव गिवन दीज टॉपिक्स. Day 1 pathology second session I have given some lighter topics. I have done the same in all the units. Okay, so now day 2 में आप अगेन स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से, तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस अच्छे से, हाइपरट्रोफी. फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बेसिक अमाइलॉइड पढ़ लिया आपने, या एक्यूट क्रॉनिक का बस जनरल फीचर्स पढ़ लिया, ये सब चीज़ें करी. सो दिस इज़ हाउ आई हैव मेड योर 21 डे टाइम टेबल. अब ये तीनों सब्जेक्ट का है, तो आप समझ सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 63 पेजेस PDF. सो आई कांट शो इट हियर. So the link is in description. You can go and you can get the 21 day timetable from there. So now you know exactly that what you need to do. Okay, आप 21 days का प्रिंट आउट निकालिए और टिक करते जाइए जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं, है ना. Now we will see that how learn the topic. Like you have studied, suppose you have completed entire cell injury, है ना, or you have completed entire say liver वाला systemic unit. Okay, so now what I want you to know is कि आपको पैथोलॉजी के लिए एक अलग से पैथोजेनेसिस कॉपी बनाना चाहिए. now what happens is suppose SLE है ना, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, तो उसकी जो एक पैथोजेनेसिस होती है, उसकी पैथोजेनेसिस आप देखेंगे तो उसमें कई सारे मार्कर्स निकलना शुरू होंगे, है ना. सो एट दी एंड जब आप सारे यूनिट्स की पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, सो जो सारे मार्कर्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं. किसी में इंटरफेरॉन गामा निकल रहा है, किसी में इंटरल्यूकिन निकल रहा है, किसी में क्या निकल रहा है, एंड यू मिक्स इट अप एंड यू फॉरगॉट ऑल दिस थिंग्स, है ना. सो आप एक पैथोजेनेसिस कॉपी अलग से बना के रखिए, जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजेज है जिनकी आपको पैथोजेनेसिस बनना चाहिए, कि इसमें ये मार्कर निकलता है, ये मार्कर निकलता है, आप उसको एक अलग से कॉपी में रखिए, सो दैट यू कैन रिवाइज इट एट दी एंड. देन इन द फार्मा ऑल्सो इट इज़ द सेम, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग्स के रहते हैं, कई बार जो रिसेप्टर पे काम करता है, कई बार हम रिसेप्टर के नाम कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार उसको GS को GQ बना देते हैं, GI बना देते हैं, सो ऑल दैट गेट्स मिक्सड अप. सो जो जो ड्रग्स आपके इंपॉर्टेंट है, भले आप इंडिविजुअल ड्रग्स का नहीं भी करें, सो आप उसको एज अ क्लासिफिकेशन कि सपोज ऑल द बीटा ब्लॉकर्स का ड्रग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है ना. यू कैन प्रिपेयर सिंगल कॉपी फॉर दैट. एंड इन माइक्रोबायोलॉजी देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड कॉपी. नाउ डेज यू आर स्टडिंग लाइक निमोनिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ओके, तो वो तो एक पैटर्न है, बट इसके साथ साथ जब आप इंडिविजुअल बैक्टीरियाज पढ़ते हैं, तो आपको जो जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लगते हैं कि यार ये जो टेस्ट थी, ये यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी, तो यू कैन इंटीग्रेट दोज 3 बैक्टीरियाज फॉर दैट सिंपल टेस्ट. सो दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग ऑफ योर MCQs ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. So this is the thing. First you will follow this 21 day timetable. You will finish all the topics, है ना. You will get a link of the complete unit. Then you will form a copy like whatever crisp is required. Then you need to know is what you need to do is make a chart. Now what does this mean is basically, see, this is one chart example I made for ECG approach. Okay, so ignore the horrible writing, but you need to finish entire thing in a chart itself. Okay, like if you are making of Wilson's disease, suppose liver hepatoleticular degeneration, so you need to make it very crisp, like you will start studying from here, and then you can finish your entire say 10 pages of content in this one chart. So this will help you in revision. Okay, like in ECG I have told that first we will see QRS complex. Okay, then after that we will see the P wave, what are the abnormalities. Okay, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली रिदम कैसी आ रही है, फिर रेट कितना है, रेट का फॉर्मूला और उससे हम क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं, देन व्हाट इज़ योर एक्सेस. सो ऐसे करके यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू मेक इट वेरी क्रिस्प, बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड यू स्टडी, इफ यू कांट रिवाइज इट एट द एंड it does not make any sense. Okay, so you need to make it crisp for revision. Okay, and now this comes your step 5 is planning revision. So as I have already made a 21 day timetable for you, what you can do is you can modify it. Like if अगर आपका एक बार का पूरा सिलेबस हो चुका है, आपके पास एक भी अनफेमिलियर टॉपिक नहीं है, तो आप रोज़ का 1 घंटा रिवीजन के लिए रखिए. ओके, अभी जैसे पहले दिन तो कुछ नहीं है, दूसरे दिन से जब भी आप करेंगे तो आप पहले दिन का थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, है ना. फिर धीरे धीरे काउंट बढ़ता जाएगा, कई बार आप हफ्ते भर का 1-2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो यू नीड टू प्लान रिविजन्स अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसके लिए ऑलरेडी आई हैव मेड अ रिकॉल लेजर, जिसमें हमने डे 1 पे, डे 3 पे, डे 7 पे और डे 21 पे रिवाइज किया है, और उसके बाद हमने जैसे भी टेस्ट दे सकते हैं वैसे टेस्ट दिया है. सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग योर सेकेंड ईयर MBBS. आई अगेन होप कि ये 21 डे टाइम टेबल आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करने में हेल्प करेगा, और आप उसको लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं. और अगेन आई वुड सजेस्ट कि कमेंट बिलो एनी डिफिकल्ट टॉपिक और यूनिट, सो दैट आई कैन मेक सम वीडियोज़ ऑन इट. And thank you so much for all your support. You can DM me any of your queries on MedShots or Telegram में MBBS notes. And thank you so much.
stay safe, stay healthy, and keep learning.